Hello students, welcome to the video lecture series for the subject economics. Students, today I'll be talking about the various initiatives taken by the government for elevation of poverty and a generation of employment in India. Now, as we all know that poverty elevation, before coming to the topic, I just want to define you those two terms which I have stated in my topic, that is poverty elevation. So, poverty elevation means the measures which are taken by the government, चाहे वो economic हो, चाहे वो humanitarian grounds पे हो. Reason क्या है? ताकि लोगों को हम drag कर सके, बाहर निकाल सके out of the vicious circle of poverty. Vicious circle of poverty I have already explained you in my previous video. So it is a prerogative of the government of a country, and it's an initiative by the government to ensure, the basic purpose is to ensure the well-being of the citizens by providing them opportunities to emerge out of the poverty. Means इस तरह के options provide करना जिससे वो poverty की problem से बाहर आ सके. नाउ ये कैसे किया जा सकता है? तो ऑब्वियसली पॉवर्टी खत्म करने के लिए जो सबसे बड़ा रूट कॉज होता है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट. सो पॉवर्टी को अगर एलिवेट करना है तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा, थ्रू विच वी कैन ईजिली रिड्यूस पॉवर्टी. सो इन अ कंट्री लाइक इंडिया नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी. सो क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? तो दिस स्ट्रैटेजीज हैव बीन टाइम टू टाइम implemented by the government since independence, and these schemes, these strategies, they actually aim in reducing basically elevating or reducing poverty and thereby increasing generating employment. So we will cover these topics one by one. So before that, I would just like to tell you about what was poverty. So poverty is wherein an individual lacks the financial resources. So basic standard of living अगर attain नहीं कर पा रहा है, minimum standard of living, तो उसका मतलब the person is poor. तो यहाँ पर ये situation poverty मतलब आप ऐसी situation में रह रहे हो, ऐसी condition में रह रहे हो कि वो इतनी worst है जिसमें आप अपनी basic needs को meet out नहीं कर पा रहे हो. तो there can be two types of poverty: absolute poverty and relative poverty. Absolute poverty refers to the conditions where an individual is benefit means जहाँ पर उसकी बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर ये मीट आउट नहीं कर पा रहा है. इन 1990 इट आइडेंटिफाई दोज लिविंग बिलो $1 अ डे एज बीइंग इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी. सो मतलब ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क बताया है, और अगर उसके बिलो हैं तो इसका मतलब यू आर सफरिंग, यू आर एक्चुअली फेसिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी. नाउ रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? इसमें रिलेटिव पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच पीपल लैक द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम which is needed to maintain an average standard of living in the respective society. So basically income inequality को measure करता है अगर हम word बोलते हैं relative poverty. Okay students? So students, now there can be a question that, ma'am, what is the basic difference between absolute and relative? Absolute means exact term में कि अगर हम अपनी basic necessities पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो we are absolute poverty, we are under a condition of absolute poverty. Relative का मतलब जब हम किसी सोसाइटी को बिलोंग करें और उस सोसाइटी के एज पर जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम अपनी मिनिमम स्टैंडर्ड को मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये relative means in comparison, absolute means in exact terms. सो ये दो ग्राउंड्स होते हैं पॉवर्टी वैल्यूएशन के लिए. ओके, एंड नेक्स्ट आई विल कम the various initiatives which are taken by the government for elevation of the poverty and employment and generation of employment in a country. तो इसमें there were various plans. poverty elevation का basic reason यही होता है कि हम we can foster economic growth in the country. Now these policies and plans they have taken up since independence, and there are various initiatives by the government with their various schemes. They try to elevate poverty and they try to generate options for employment. So now I'll be taking up all these methods one by one. First is Integrated Rural Development Program, IRDP बोलते हैं in short. This program was introduced in the year 1978 to 79 and it was universalized from 2nd October 1980. इसका aim क्या होता है कि we try to give assistance to the rural poor in the form of subsidy and bank credit so that they can a productive employment opportunities through successive plan periods were being provided.
Now, on 1st April 1999, the IRDP and elite programs were merged into a single program जिसे हम बोलते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY. इसका मेन एम्फोसिस था ऑन ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिससे उनकी एक्टिविटीज प्लानिंग ऑफ क्लस्टर एक्टिविटीज हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जा सके, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके, क्रेडिट एंड मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड कर सकें. तो दिस वाज द मेथड, दिस वाज द मेजर जिसमें हम IRDP के अंडर इनको कवर करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज जवाहर रोजगार योजना. जवाहर रोजगार योजना ये एक वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था जो कि हमारे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के साथ एंड रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसको हमने स्टार्ट किया था विद द 6th and the 7th प्लान्स. स्टूडेंट्स, प्लानिंग पीरियड जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इन सारे प्लान्स का रेफरेंस तब भी देंगे. तो नाउ दिस ये जो NREP था, दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एंड ये RLEGP दैट इज रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इन दोनों को मर्ज करके 1989 के अप्रैल में हमने जवाहर रोजगार योजना बनाई थी. यानी NREP और RLEGP दैट इज रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को मर्ज करके JRV दैट इज जवाहर रोजगार योजना. जवाहर रोजगार योजना वॉज मेंट to generate meaningful employment opportunities for the unemployed and underemployed in rural areas through creation of economic infrastructure and community and social assets. Now JRV was revamped again. हमने इस प्रोग्राम को ख़त्म किया in the year 1st April 1999 and again उसकी जगह पे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना. तो जो रोजगार योजना को हमने ग्राम समृद्धि योजना में चेंज किया. It has become program for the creation of rural economic infrastructure along with that generation of employment as the secondary objective. Okay. इसके अलावा जो तीसरा रूरल हाउसिंग से रिलेटेड प्रोग्राम था दैट इज इंदिरा आवास योजना. इंदिरा आवास योजना बेसिकली आपको प्रोवाइड करती है फ्री हाउसिंग टू पीपल हु लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, जो भी फैमिलीज हैं जो रूरल एरियाज में रह रही हैं, एंड मेनली इनका टारगेट आवास इस इंदिरा आवास योजना में बेसिकली जिनको हम बेनिफिट कर रहे थे दे वर पीपल फ्रॉम SCs एंड ST कैटेगरीज. नाउ इट वाज फर्स्ट मर्ज विद जवाहर रोजगार योजना इन 1989 एंड in 1996 it broke away from JRV into a separate housing scheme which targeted rural poor. Okay, now next is food for work program. Food for work means again it was started in the year 2000 to 2001 as a component of EAS. It was first launched in the 8 drought affected states of Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Uttaranchal and Maharashtra. Now since इसका फूड फॉर वर्क था तो इसका मेन मोटिव क्या था कि हम फूड सिक्योरिटी भी देते थे थ्रू एम्प्लॉयमेंट. फूड ग्रेन्स को हम सप्लाई करते थे इन स्टेट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट, और सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन जो दी जाती थी दैट वाज बेसिकली डन बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गोडाउन्स. ओके. Now next is SRGY, that is संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. The JGSY, that is JGSY scheme along with EAS and the Food for Work program, इसको हमने रिवैम्प करके मर्ज करा विद द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्कीम. ये हमने इंट्रोड्यूस करी थी 1 सितंबर 2001 में. The objective of the scheme was to provide wage opportunities, and along with that durable economic infrastructure was the aim to be provided in the rural areas, and provision for the food and nutrition security for the poor. Okay. और जो लेटेस्ट स्कीम आपको पढ़नी है दैट इज महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम, जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. एक पास हुआ था मनरेगा के नाम पे 2005 में, जिसको हमने लॉन्च किया था 2 फरवरी 2005. बेसिकली मनरेगा स्कीम में 100 डेज का अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट हर साल एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, इसका टारगेट था. जो 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स जो रिजर्व थी वो फीमेल्स के लिए थी. सेंट्रल गवर्नमेंट will also establish नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड जिसके थ्रू इसमें पैसा मिलता था. नाउ सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट ने भी स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड बनाया था फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम. अंडर दिस प्रोग्राम इफ एनी एप्लीकेंट
is not provided employment within 15 days, he shall be entitled to a daily unemployment allowances. Means अगर 15 दिन तक कोई रोजगार नहीं मिला तो आपको इसमें एक फिक्स अलाउंस आपको मिलता था. तो इसके फीचर्स क्या थे? राइट बेस्ड फ्रेमवर्क, 100 दिन का रोजगार देना ही देना है, टाइम बाउंड है, लेबर इंटेंसिव है, यानी बेसिकली यहाँ पे लेबर टारगेटेड काम के लिए होता था, फीमेल के लिए 2/3 पोस्ट थी तो वेमेन एम्पावरमेंट थी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी थी, और अगेन यहाँ पे एडुकेट फंडिंग मिलती थी फ्रॉम द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स. ओके, नेक्स्ट जो है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. नेशनल program was actually launched on November 14, 2004, जिसमें हम 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करा था. इस ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम was to provide additional resources which was to be given under संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. Now this was 100% centrally funded program, and this program has been subsumed under मनरेगा scheme from February 2nd, 2006. नाउ इसके अलावा आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था 2011 का. ये एक स्किल एंड प्लेसमेंट इनिशिएटिव था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM के नाम से, और इसमें हमारा मिशन था पॉवर्टी रिडक्शन का. इसको आजीविका 2011 के नाम से भी जानते हैं. नाउ इट इन्वॉल्व्स आउट द नीड टू डाइवर्सिफाई द नीड ऑफ द रूरल पुअर एंड प्रोवाइड देम groups are formed at the village level to help the program village level to help the needy. Now next is प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी, इसको कैबिनेट ने सैंक्शन किया था 21 मार्च 2015 में, एंड इट क्लियर द स्कीम टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू 1.4 मिलियन यूथ्स विद एन ओवरऑल आउटले ऑफ रुपीज 1120 करोड़ का. नाउ सिंस प्रधानमंत्री कौशल, तो इसका मतलब ये, इसमें हमने द स्कीम वाज गिवन प्रोवाइडेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. इसका मेन फोकस था कि जो भी फ्रेश एंट्रेंस लेबर मार्केट में एंटर कर रहे थे, स्पेशली जो तुम्हारे क्लास 10th और 12th के ड्रॉप आउट्स थे, तो उनको रिक्वायर्ड स्किल प्रोवाइड करना, सो दैट उनको हम प्रॉपर रोजगार प्रोवाइड कर सके. ठीक है. नेक्स्ट है नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना. हृदय बोलते हैं इसको. हृदय स्कीम वाज लॉन्च ऑन 21 जनवरी 2015 टू प्रिजर्व एंड रिजुविनेट द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, जिसमें 500 करोड़ रुपीज दिए गए थे बाय द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली. इसमें बेसिकली हमने कवर किया था उन एरियाज को जो कि अमृतसर, वाराणसी, मतलब जो कि हेरिटेज से रिलेटेड थे, उनके डेवलपमेंट के लिए. नाउ दिस प्रोग्राम प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द society for a holistic development. So students, these were few like schemes which you had to study under the various like initiatives, जो कि अब इसमें कॉमन है. अगर बेरोजगारी है तो रोजगार देंगे तो ऑटोमेटिकली दिस विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ like poverty. So the students, these were the scheme. I had already shared you all like required एक कॉलम फॉर्म में हमने एक टैबुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू इन इनिशिएटिव्स को आपको ऑलरेडी PDF फॉर्म में शेयर कर दिया है. तो जस्ट गो थ्रू इट. इन केस एनी डाउट यू कैन कम अप विद योर क्वेरीज. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.